Hello everyone, this is Dr. Jyoti D. Gulwani with Banking, Insurance and Financial Services. Our today's topic is various types of bank accounts. That is, which type of bank accounts you can open in your bank. Under that, there are basically 7 types. Going with the first one. Number 1 is saving account. Now, before going further with the saving account, there are 2 types of saving account. First one is Basic Saving Bank Deposit Account, which is known as BSBDA. Number 2 is Basic Saving Bank Deposit Accounts and Small Scheme, which is known as BSBDS. Now, firstly, with the saving account, we will go with the number 1, that is Basic Saving Bank Deposit Account. Now see, in all these types of account, only you have to remember who can open this account, which kind of facilities are given in this account, and with which amount they can open the bank account. That is, with which amount a customer can open a bank account. Only you have to remember all the things. That is, who can open, by which amount they can open, and which facilities actually they are given, which facilities are handed over by the bank to the customers. So going with the first one, Basic Saving Bank Deposit Account. This account will be considered actually as a normal banking service. For this account, maintenance of minimum balance is not required. Now see, I have said that to open different kind of account, you have to keep minimum balance. ये ऐसे टाइप का अकाउंट है जिसमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है. नाउ ATM कार्ड, ATM कम डेबिट कार्ड, रुपी कार्ड विल बी गिवन फॉर दी अकाउंट होल्डर. जिसका भी अकाउंट होगा उसको ATM कार्ड, ATM कम डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड दिए जाते हैं. There are no going to be need in a month, but account holders will be allowed most of 4 withdrawals in a month, which includes ATM withdrawal also. आप जितनी भी बार डिपॉजिट करना चाहो, यू कैन डिपॉजिट इनटू द बैंक. डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है. आपको हर रोज़ पैसे जमा करवाने हो, आप हर रोज़ अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हो. लेकिन अगर आपको पैसे निकालने हैं तो देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 4 विड्रॉल. आप महीने में 4 बार ही पैसे निकाल सकते हो. फिर वो ATM में से निकालो कि बैंक में से जाके निकालो, 4 बार निकाल सकते हो विदाउट एनी चार्जेस. उसके ऊपर चार्ज नहीं लगते हैं. 4 बार से ज़्यादा अगर आप पैसे विड्रॉ करोगे, देन ऑन विड्रॉवल, ऑन 5th विड्रॉवल यू विल बी चार्ज दी चार्जेस. 4 विड्रॉ कर सकते हो तब तक चार्ज नहीं है. फिर 5वां विड्रॉल करोगे तो उसके ऊपर फिर बैंक चार्ज लगाती है. The above facilities will be given without any charges. There will be no charge levied for non-operation activation of inoperative basic saving bank deposit account. Means आपका अकाउंट अगर नहीं चल रहा है, आपने वापस उसको एक्टिवेट करवाया तो उसके लिए बैंक कोई भी चार्ज नहीं लेती है. एंड फॉर दिस अकाउंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड अप टू 5000. ये बैंक अकाउंट के लिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी है. मैक्सिमम यू कैन विड्रॉ फॉर 5000. दिस इज व्हाट अ बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. Number 2 is, that is Basic Saving Bank Deposit Account Small Schemes. There are the accounts relaxed with KYC with a minimum document required of self-attest address proof and photograph. That means इसमें आपको KYC देना पड़ता है. KYC क्या है, you know it very well. आपको minimum documents भी इसमें देने हैं, आपका एड्रेस देना है, प्रूफ विद द फोटोग्राफ. ये चीज़ें आपको इसमें देनी पड़ती हैं. आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका एड्रेस, आपका फोटोग्राफ. देन इसमें टोटल क्रेडिट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज़ इन अ ईयर. 1 साल से ज़्यादा आप इसमें पैसे 1 साल में जमा नहीं कर सकते हो. मैक्सिमम बैलेंस शुड नॉट एक्सीड 50,000 एट एनी टाइम. 50,000 से ज़्यादा भी एक टाइम से ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए. कैश विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र मस्ट नॉट एक्सीड ₹10,000 इन अ मंथ. जो भी पैसे आप निकालोगे, जो भी आप ट्रांसफ़र करोगे, वो भी महीने में 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. देन foreign account cannot be credited to this account without completing normal KYC formalities. फॉरेन अकाउंट में से यहाँ पे कोई भी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होगी अगर आपका KYC यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो.
Basically, these two types are not opened actually generally by the general people. हम जैसे लोग ये दो अकाउंट जल्दी से इतना खुलवाते नहीं हैं because certain restrictions are there, certain rules are there. Majorly people are opening with the regular saving bank account. This bank account can be opened by any resident, individual, single accounts. Two or more individuals in joint accounts, associates, clubs are eligible for this account. मतलब हमने जो लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कस्टमर देखे थे उसमें से कौन खोल सकता है, इंडिविजुअल हो, सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं, एक से ज़्यादा किसी का अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो, एसोसिएशन वाले अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्लब एक्सेट्रा. जिस किसी को भी ये सेविंग अकाउंट खुलवाना है, रेगुलर सेविंग अकाउंट, दे कैन ओपन दिस अकाउंट. मोडेस्ट क्रेडिट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द डिपॉजिटर. अलग अलग वेज हैं क्रेडिट के. एटीएम के थ्रू पैसा जमा कर सकते हो, डायरेक्टली ऑनलाइन पैसा जमा करवा सकते हो, बैंक में जाके पैसा जमा करवा सकते हो. ये सारी फैसिलिटी रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट वालों को मिलती है. 2 फ्री चेकबुक्स विल बी इश्यूड पर ईयर. साल में आप 2 चेकबुक आपको फ्री में बैंक इश्यू करता है, आपका नाम का प्रिंट करके देता है. लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा चेकबुक चाहिए तो बैंक इज चार्जिंग फॉर दी चेकबुक. Internet banking facility will be provided without any charges. Then balance inquiry, NEFT, bill payment, mobile recharge etc. are provided through mobile phones. ये सारी चीज़ें आपको इसमें फैसिलिटी मिलती है when you are going to open regular saving bank account. Student can open this account with zero balance by providing required documents. स्टूडेंट के भी अभी अकाउंट खुलते हैं, आपको पता है, वो लोग भी यही अकाउंट खुलवाते हैं, रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट. एंड उनका जो अकाउंट होगा वो ज़ीरो बैलेंस होता है और उसके लिए भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं. तो दिस इज़ व्हाट होल अबाउट रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट. फर्स्ट टू आर मेजरली नॉट ओपन बाय द जनरल पीपल इन सेविंग अकाउंट, बट दिस रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट इज opened by the most of the people. Number 3 is current account. Any resident, individual, single accounts or more individuals in joint account, association, limited companies, religious institutes, educational institutes, charitable institute, clubs etc. are eligible for this account. मतलब ये सारे लोग ये current account खुलवा सकते हैं. पेमेंट कैन बी डन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम. आप इसमें बहुत सारी बार पैसा जमा करवा सकते हो, कोई भी लिमिट इसकी नहीं है. फंड कैन बी रेमिटेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू द कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट. कहीं से भी आप इसका पैसा विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ये आपकी कंट्री के कोई भी जगह से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑल्सो इज अवेलेबल इन दिस. इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस करंट अकाउंट. मेजरली ये अकाउंट कौन खुलवाता है? दोज हु आर हैविंग दी बिजनेस. जो लोग के बिजनेस होते हैं ना, वो लोग ये करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, क्योंकि डेली उन लोगों को पैसा जमा करना होता है, डेली उन लोगों को पैसा लेना भी होता है. दैट्स वाई दे आर ओपनिंग दिस करंट अकाउंट, मेनली बिजनेस पर्सन. Then number 4 is recurring deposit account. In this, actually cumulative deposit scheme is there. Only one is there, which name is given cumulative deposit scheme. Now, who can open this account? Any resident, single account, 2 or more individual in joint account, association, clubs, institute specifically permitted by RBI are eligible to open this account in single or joint name. कोई भी इसको खुलवा सकता है, जो सिंगल है, जॉइंट नाम से किसी ने खोला है, एसोसिएशंस हैं, क्लब है, इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने स्पेसिफिकली परमिशन ली है इंस्टीट्यूट ने बाय द RBI, वो लोग ये क्यूमुलेटिव डिपॉजिट स्कीम अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं. कैसे खुलता है? पीरियोडिक मंथली इंस्टॉलमेंट कैन बी फॉर एनी अमाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम एज लो ₹50 ऑनवर्ड्स. मतलब मंथली, या तो आपने डिसाइड किया है 6 महीने पे पैसा भरोगे या तो हर महीने भरोगे, तो वो आप इंस्टॉलमेंट हर महीने आपको पैसा भरना है वो अकाउंट में. एंड इट स्टार्ट विद द ₹50, 50 रुपये से वो चालू होता है. वो अकाउंट में हर महीने आपको पैसा भरना है.
Account can be opened for any period ranging from 6 months to 120 months in multiple of 1 month. आप कोई भी टाइम पीरियड के लिए इसमें अकाउंट खुलवा सकते हो, जिसका पीरियड चालू होता है 6 महीने से 120 महीने तक आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ करके आप अकाउंट खुलवा सकते हो। मल्टीप्लाई मतलब 6 में 1 डालो तो 7 महीने के लिए भी खुलवा सकते हो, 7 में 1 डालो तो 8 महीने के लिए खुलवा सकते हो, 9, 10, 11, 12 आप 120 मंथ्स तक के लिए ये अकाउंट खुलवा सकते हो। द अमाउंट सिलेक्टेड फॉर इंस्टॉलमेंट पेएबल एवरी मंथ, मतलब आपने जो अमाउंट डिसाइड किया था वाइल ओपनिंग द अकाउंट, वो तो आपको पैसा भरना ही है, मतलब उतनी अमाउंट मिनिमम होनी चाहिए। सपोज आपने ऐसा बोला कि हम 50 रुपये से स्टार्ट करेंगे, 50 रुपया मिनिमम हम भरेंगे ही, तो यू हैव टू मिनिमम डिपॉजिट 50 रुपीज़ पर मंथ। उससे ज़्यादा डालना चाहो तो यू कैन डिपॉजिट, लेकिन उससे कम नहीं डालना है। द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वंस फिक्स्ड कैन नॉट बी अल्टर, आपने इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दिया कि इतने टाइम के लिए आपको पैसा डालना है, फिर बार बार आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अप्रूव्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी क्वार्टर। कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में बताया था। कंपाउंडेड दैट इज इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट विच यू आर गेनिंग ऑन योर मेन इंटरेस्ट। सपोज आज आपने 10% इंटरेस्ट रेट पे अकाउंट आपका खुलवाया, तो नेक्स्ट मंथ में आपकी अमाउंट सपोज 10,000 है अकाउंट में, तो 10,000 प्लस 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 10% आपको उसका मिलेगा 1,000। फिर नेक्स्ट मंथ में आपको कितने के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 प्लस योर इंटरेस्ट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दैट इज नोन एज योर कंपाउंडेड डिपॉजिट स्कीम। TDS विल बी एप्लीकेबल ऑन द इंटरेस्ट, टैक्स आपको इसके ऊपर भरना पड़ता है एज पर द लेटेस्ट चेंजेस इन द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो भी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से आपको इसमें टैक्स भी भरना होता है। पासबुक विल बी गिवन टू द डिपॉजिटर, आपको पासबुक भी दी जाती है, उसके थ्रू आप इसमें से चेक कर सकते हो दैट हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक एंड हाउ मच इंटरेस्ट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय यू ऑन योर डिपॉजिट्स। Number 5, fixed deposits. In fixed deposit, there are 2 types of deposit, short deposit as well as the fixed deposit. Now, if we talk about the first one, short deposit. Bank accept deposit from the customer varying from 7 days to maximum of 10 years. Short deposit आपकी मिनिमम चालू होती है 7 दिन से। आप 7 दिन के लिए भी फिक्स डिपॉजिट रख सकते हो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। And this short deposits time period is actually period of 7 days and above but not exceeding 179 days. 179 days से ऊपर नहीं होना चाहिए और which is identified as short deposit। लेकिन इसके लिए मिनिमम अमाउंट भी है। अगर 7 दिन के लिए रखते हो शॉर्ट पीरियड के लिए तो मिनिमम अमाउंट आपकी होनी चाहिए 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपये अगर आपके पास हैं तो ही आप 7 दिन के लिए रख सकते हो, वरना 4 लाख है तो भी आप 7 दिन के लिए नहीं रख सकते हो। मिनिमम अमाउंट ऑफ दिस शॉर्ट डिपॉजिट स्टार्ट विद द 5 लाख रुपीज़ एंड अ टाइम पीरियड फॉर दिस शॉर्ट पीरियड इज व्हाट 7 to 14 days. It can be extended to 179 days but मैक्सिमम 7 से 14 दिन के लिए आपको ये शॉर्ट डिपॉजिट रखनी ही है, तो ही आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। Number 2 is fixed deposit receipts. Now what are these fixed deposit receipt and who can go with this fixed deposit? Any resident individual, single accounts, 2 or more individuals in joint account, associations, minors, societies, clubs etc. are eligible for this account. कोई भी मतलब ये फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकता है। मिनिमम फिक्स डिपॉजिट जो अमाउंट है इन मेट्रो एंड अर्बन सिटीज़ इज़ 10,000। मिनिमम जो मेट्रो सिटी और अर्बन ब्रांचेज हैं उसमें 10,000 हैं एंड रूरल एंड सेमी अर्बन सीनियर सिटीज़न के लिए मैक्सिमम अमाउंट आपको मिनिमम अमाउंट आपको 5,000 रखनी है। उसके इतना रखना है, वो डिपॉजिट आपकी फिर स्टार्ट होगी। For the subsidy kept under the government sponsored scheme, margin money, earnest money, court attached orders deposit, minimum amount criteria will not be applicable. मतलब बाकी कोई इसमें क्राइटेरिया इन शॉर्ट एप्लीकेबल नहीं है।
Depositor may ask for repayment of the deposit before maturity. Repayment of amount before maturity is allowable. पहले ऐसा होता था, पहले के ज़माने में आपने अगर फिक्स डिपॉजिट अमाउंट रखी है तो जब आप उसका टाइम पीरियड ख़त्म होता है तभी ही इंटरेस्ट मिलता था। एक दिन पहले भी अगर विड्रॉ करो तो उसका पैसा नहीं मिलता था। बट नाउअडेज दिस इज़ नॉट द केस। आप आपका पैसा कभी भी मांग सकते हो मैच्योरिटी होने के पहले, एंड इट इज़ अलाउड बाय द गवर्नमेंट. Only interest rate differs from bank to bank depending upon the tenure of the depositor and when the bank changes the rate. बैंक का हर एक का चार्ज अलग अलग होता है, आपने कितने टाइम पीरियड के लिए रखा है उसके ऊपर मेन डिपेंडेंट है, एज वेल एज बैंक जो चेंज करती है रेट उसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो दिस इज़ व्हाट योर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट. नेक्स्ट इज डीमेट अकाउंट. दिस इज़ यूज टू कंडक्ट एक्चुअली स्ट्रेस फ्री ट्रांजेक्शन ऑन द शेयर्स. शेयर्स के लिए मैंने आपको बताया है मेनली उसके लिए ही ओपन होता है. कौन उसको खोल सकता है? एन इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट इंडियन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन नेशनल, कॉरपोरेट, ट्रस्ट, clearing houses, financial institute, clearing members, mutual fund, banks and other depository accounts. जो लोग शेयर्स में डील करते हैं, in short, they can open this account. For opening this account, an individual has to fill a form. उसको एक फॉर्म भरना है, submit a photo of the applicant along with a photocopy of voter ID, passport or Aadhaar card or driving license, and demat account number will be provided to the applicant immediately after completing of the process of the application. कैसे आपको खुलवाना है? अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म भरना है और जो अप्लाई कर रहा है उसकी फ़ोटो के साथ या तो आपकी वोटर आईडी होना चाहिए, या तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, या तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, या तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. जैसे आप ये सारी चीज़ें जमा करोगे वैसे ही वो लोग आपको डीमेट अकाउंट नंबर देंगे और उसके साथ फिर आपका अकाउंट खुल जाता है. दिस इज़ व्हाट अ डीमेट अकाउंट. Now there are basically 3 types of NRI account that we will learn in the next video with the difference that which are these 3 types of NRI accounts. So today we are completing with this 6 types of account. Number 1, saving. Under the 2 types are there: regular saving bank account, current account, recurring deposit account, fixed deposit. Again there are 2 types, and demat account. So for the 7th point, stay tuned. We will go in the next video. Till then, goodbye.